Hello student, I am Arun Kumar from Beautiful Mind IS and welcome to our essay discussion class, and the topic is an ideology may make a person blind. This is the topic of essay and I am going to discuss its framework. Briefly, it will take 5 minutes and 10 minutes. Okay, you will understand this thing. When such a topic comes, many people find difficulty because they feel that it is a topic is philosophical. So I will help you to understand how you should think about that. See, an ideology may make a person blind. What is the meaning of that? First of all, I always say that don't think about introduction and conclusion. First of all, you focus on body. So in the main body, what will that? Main body question will be that what is an ideology? हिंदी में इसे विचारधारा कहते हैं. That an ideology is a set of philosophy that is propagated by something that have some tenets in it. For example, Marxism is an ideology. Maoism, capitalism, many examples you can cite. Ideology, liberalism, it has some underlying tenets. And people have developed beliefs in that. So I will tell you that what is the meaning of ideology. And second thing is, when you talk about the blindness, so what kind of blindness it is talking about? It is not of eyes, it is of mind. Blindness of mind is. So you should first you clarify that what is the meaning of ideology. एक विचारधारा का मतलब क्या होता है और कैसे कैसे एक विचारधारा जब आप अपनाते हैं, when you follow some ideology, then how it creates some trap and how it creates limitations in your vision, in your perceptions, and that we can discuss. So you must clarify this thing, that blindness here literally means what? Blindness of mind, blindness of vision, blindness of perceptions, that you will not be able to see other aspects. Getting? So how now you will talk about some examples. I can give you many examples. You can think of your own. During freedom struggle, Bhagwati Charan Bora had written a book, The Philosophy of Bomb. If you have gone through history, I think you will be aware of that. The philosophy of bomb, in that book, what he was advocating, what position he was advocating, and why people of Hindustan Socialist Republican Army, also called Bhagat Singh groups and all, Chandrasekhar Azad and all, they were inspired by this book, and how these books, means this books particularly, when people, member of these groups, went through this book, then they started spreading the ideology of this thing. Philosophy of bomb is not philosophy of exactly bomb. It is said that if you want to get your demand fulfilled, then persuasion is not the right mechanism. ब्रिटिशर से हम केवल परसुएट करके चीज़ों को नहीं ले सकते जैसा कांग्रेस कर रही थी और अभी लिबरल लोग कर रहे हैं. So we must create pressure in the opponent party. The philosophy says that it is the pressure, it is the power that create bargaining, that makes you to fulfill the demand. आपके जो डिमांड है उसको फुलफिल आप सामने वाला आपके ताकत को देख कर करता है. दिस इज द अंडरलाइंग फिलॉसफी. एंड व्हेन यू क्रिएट द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, मतलब कि किसी व्यक्ति के अंदर या किसी इंस्टीट्यूशंस के अंदर, व्हेन यू क्रिएट प्रेशर, then the bomb is symbolic of what? This ideology, that a power, that who make the rules is made by the ruler, something like that. So if you have power, you can rule also and you can make rules also. So this kind of things was there. So just one example I have picked up. You can cite many examples. So once you follow some philosophy, you get convinced, then you start believing in the prophecy, you start believing in the advocacy that is given by the proponent, जिन्होंने उसको दिया है उसकी बातों में आप सहमत होते हैं. Then what happens? You develop some beliefs about things
दिस गवर्नमेंट, दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट और दिस थिंग दैट थिंग्स, जैसे जब हम माओइस्ट फिलोसफी कर देते हो दैट ये जो अमीर लोग हैं दे कांट थिंक ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पुअर। ये बेसिक प्रीमाइज है कि ये अमीर लोग की जो साइकोलॉजी है, जो विचारधारा है, जो सब कुछ है, बिल्कुल हमारे से कोई लेना देना नहीं। दे आर जस्ट एक्सप्लॉइटेड, दे विल एक्सप्लॉइट, है ना, वो ढोंग करेंगे, एवरीथिंग विल डू, बट दे विल नॉट थिंक ऑफ वेलफेयर। दे आर नॉट आवर फ्रेंड्स, दे आर एनिमी, बिकॉज दे आर गाइडेड बाई देयर कैपिटलिस्ट माइंडसेट एंड एटीट्यूड दैट इज प्रॉफिट एंड। जब हम इस तरह की विचारधारा को समझते हैं तो नो मैटर सपोज यू आर अ इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे आपका नाम कितना भी हो, टाटा बिरला को भी हो, हम उसी से देखना शुरू कर देते आइडियोलॉजी कि आप तो हमारे हो ही नहीं सकते, आप ऐसे। सो द व्हेन आइडियोलॉजी हैव सम बिलीव्स, knowledge, conceptual framework, advocacy, a contour घेरा। आइडियोलॉजी का एक अपना घेरा होता है, मतलब वो चीज़ों को अपने फ्रेमवर्क से दुनिया को देखता है। इसको आपको बताना है। किसी भी आइडियोलॉजी को लेकर आप बता सकते हैं, 2 या 3 लिख सकते हैं आप। कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म ले लो, कोई भी लेके आप बता देंगे। तो आइडियोलॉजी एक बिलीव्स क्रिएट करता है, इनकलकेट करता है अपने फॉलोअर, एंड देन we develop, suppose I follow that ideology, then I develop corresponding attitude, I start judging things in that way. In mind I carry now what my attitudes toward the things. मैं अब न्यूट्रल नहीं रहूँगा, just opposite position will what I am open to all kind of information and things. That is called scientific approach, okay? But ideological means what, you are inclined to something without judging and all, you believe that this is right and this is right. सो आप जिस आइडियोलॉजी के प्रति विश्वास रखते हैं, जिस विचारधारा को फॉलो करते हैं, उसी को सही साबित करने में लगते हैं। तो ये होता है कि दैट व्हाट यू बिलीव, व्हाट यू सी, दिस इज़ द इक्वेशन। जिस बात को आप में विश्वास करते हैं, जिस विचारधारा को आप फॉलो करते हैं, वो दिखता भी है आपको सामने। कुछ ऐसे एविडेंसेस भी होंगे जो आप मानते हो कि आप सही भी हो, आपके कॉन्ट्रेरी है, दैट इज कॉन्ट्रेरी टू योर बिलीव्स, बट यू वोंट पे अटेंशन टू दैट थिंग, और यू मे skip that thing also, not deliberately, unconsciously, because your focus will not go on that things. So in that way, what is said, that when we start following something, when we are inside a ideology, we consciously and unconsciously we refuse to see the things that are other side of the contour, outside of the contour. जो हमारी सीमाओं के परे जो चीज़ें हैं उसको देखना बंद कर देते हैं, या हमें दिखाई ही नहीं देता, ये भी आप कह सकते हैं। तो समस्या क्या पैदा होती है कि आप अपनी चीज़ों को तो समझते हैं और उसके समझने का अपना एक पर्सपेक्टिव है आपको, बट व्हेन यू ट्राई टू, व्हेन सम अदर थिंग्स कम दैट आर नॉट विद इन योर कंटूर फिट फॉर यू, you may either refuse to see consciously, unconsciously, or even if you are, suppose that things is brought into your consciousness attention, then you start doing thinking in a way that reject the ideas. तो आप अपनी विचारधारा से इतना लगाव हो जाता है कि आप उससे लगाव होते, साइंस में इसको क्या कहते हैं कि आप जिस चीज़ में आप करना शुरू करते हैं, जिस चीज़ से लगाव रहते हैं, एक रिसर्च हाइपोथेसिस होता है कि जिस चीज़ में आप रिसर्च करते हैं तो आपका हाइपोथेसिस, यू शुड नॉट ट्राई टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस। व्हाई? बिकॉज यू विल हैव अ कन्फर्मेशन टेंडेंसी, कन्फर्मेशन बायस। ह्यूमन माइंड इज लाइक दैट। द मोमेंट वी स्टार्ट इंटरटेनिंग समथिंग, किसी चीज़ को हम जैसे ही करना शुरू करते हैं उसके प्रति थोड़ा लगाव हो ही जाता है और हम इन ग्रुप जैसा सोचते हैं, इन वन। एंड कितना वल्नरेबल है इसके एक स्टडी से समझिए कि कुछ लोगों के को लेकर टू ग्रुप, वन ग्रुप वॉज देयर, सभी पीपल वेयर फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड, टू ग्रुप वेयर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टॉस। अगर हेड आएगा आपके लिए तो यू विल गो इन दिस ग्रुप, एंड टेल आएगा तो यू विल गो इन ए एंड बी ग्रुप। एंड देन आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड interacting with for something and discussing and debating on some issue. What has been observed, that people were randomly assigned in group A and B, but just because they will once they are in the group, they started advocating the position of the group. They started favoring that group, either for group A for A position and group B for.
irrespective of the merit of the argument, there was inclination to follow that. क्या होता है, विचारधारा या समूह की जो विचारधारा है, ग्रुप की विचारधारा है, उसको आप समझिए। जिस आइडियोलॉजी में आप जुड़ते हैं, चाहे जैसे जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, फिलॉसफी, हिंदुइज़्म है, इस्लाम है, जो भी आप धार्मिक रूप से ले लें, किसी जिनकी भी जैसी भी फिलॉसफी आपके माइंड में है, वो उस विचारधारा के दायरे से आप जुड़ते हैं, उसके विचारधारा से आपको रखते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे आप डिफेंड भी करना शुरू करते हैं। एंड नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। जैसे साइंटिफिकली आई कैन टेल यू दैट, जैसे मैं आपका पेपर इवैल्यूएट करता हूँ, आई कैन टेल यू दैट दिस आंसर इज नॉट करेक्ट, बट इफ आई डिसलाइक यू और लाइक यू, then how I will evaluate, that will be attitudinal evaluations. Actually this happens in ideology. Once you follow ideology, those who are of the same ideology, people having same ideology in their mind, they become friend and you create a group, that in group, our group, हमारे लोग हैं, और चीज़ों के प्रति डिस्कस करने का, समझने का अपना एक दायरा हो जाता है। आप बाद में बात किसी दूसरी बारे में बात भी नहीं करते। आपने कई कल्ट को देखा होगा, सामूहिक आत्महत्या कर लिया, अमेरिका में भी आपने देखा। साइकोलॉजी क्या था कि इन लोगों ने ऐसा क्या सोचा कि सब कुछ एक ही जैसा, सभी के विचार एक जैसे कैसे हो सकते हैं, इतना तो इरेशनैलिटी नहीं होगी लोगों में। बट वंस यू आर इन अ ग्रुप, वंस यू आर पार्ट ऑफ ए आइडियोलॉजी, तो कभी कभी इतना स्ट्रांग वो आइडियोलॉजी होता है कि आप बाहरी चीज़ों को देखना छोड़ देते। तो ये जो ऐसे का जो टॉपिक था कि एन आइडियोलॉजी मे मेक अ पर्सन ब्लाइंड, मतलब क्या कि जब आप व्हेन यू स्टिक टू द आइडियोलॉजी एंड व्हेन यू हाईली कमिटेड टू द आइडियोलॉजी, तो आइडियोलॉजी सही या गलत ये होता है, लेकिन ये दिस कुड इम्पेयर योर न्यूट्रलिटी, ये न्यूट्रल नहीं रहने देता आपको। व्हाट अ साइंटिफिक अप्रोच डिमांड्स, जैसे मैं अगर पहले से ये मान लूँ कि आपका आंसर सही है या गलत, ये तो आंसर खराब ही लिखेगा, मैं कैसे एवेलुएट करूँगा? irrespective of the merit of the answer, I will start judging the things, something like that. So an ideology could make the person blind. आपको इस आइडियोलॉजी को के मैकेनिज्म को बताना है कि कैसे आइडियोलॉजी बिलीफ्स इनकलकेट करता है और बिलीफ से कैसे एटीट्यूड बनते हैं। आप अगर एटीट्यूड साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप समझते होगे, अगर आपने तो इथिक्स में भी पढ़ा होगा ना, एटीट्यूड फॉर्मेशंस की, एटीट्यूड किस तरीके से बनते हैं। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन इज आवर कॉग्निशंस। तो बिलीफ से एटीट्यूड बनते हैं, और एटीट्यूड कई रूप्स में बनते चले जाते हैं। दैट निगेटिव एटीट्यूड फॉर द इंटायर ग्रुप इज कॉल्ड प्रेजुडिसेस, एंड प्रेजुडिसेस कुड मेक यू ब्लाइंड। इट कुड टेक यू द फॉर्म ऑफ स्टीरियोटाइप्स अबाउट ओवर जनरलाइज्ड बिलीफ्स अबाउट समथिंग। तो ये बिलीफ्स जो आप कैरी करते हो ओवर जनरलाइज्ड ही है कई बार, सो दैट कुड क्रिएट ब्लाइंडनेस। तो यहाँ ब्लाइंडनेस ऑफ आई नहीं, ब्लाइंडनेस ऑफ माइंड, ब्लाइंडनेस ऑफ यू कैन से दैट व्हेन यू रिफ्यूज टू कंसिडर न्यू थिंग्स और अदर थिंग्स, तो उसको ब्लाइंडनेस ही कहेंगे। और जिसको जो भी एग्जांपल दे के आप इसको बिल्डअप करना शुरू करते हैं। तो ये जो मेन इसकी इस हर एक ऐसे की मैं बताता हूँ, एक स्पिरिट है, एक कोर है, एक आत्मा है, एक कह सकते हैं हर एक यू नीड टू पास थ्रू इट, आपको उसको टच करना है। आप कौन से एग्जाम्पल्स देते हैं, क्या कंटूर होता है वो अपनी जगह, लेकिन ऐसे की जो आत्मा है, उसका जो स्पिरिट है, have you understood or not, and whether you are touching that thing or not, that will decide that whether you are getting marks or to what extent you will get marks, that will depend upon it. So clarity, simplicity, linearity, ये सब होना चाहिए अपने राइटिंग में। लेकिन अल्टीमेटली आप लिखते क्या है ये मायने है ना। तो वो तो अगर आप इफ़ यू हैव issue in telling the things, means you have communication is a problem. You are not, suppose what is in mind and what you are putting in the paper are different, it means you should improve your linguistic skills. But I'm talking about everything is okay, but now then how to build up this kind of philosophical things? Don't you think that I have taken one or two philosophical illustrations and I have built up this thing? I am trying to clarify the meaning of what that, how ideology could make a person blind. Now move one step forward. तो दुनिया में कोई ऐसा ग्रुप है, कोई ऐसे लोग हैं, कैसे हम क्या पाते हैं कि दे आर फ्री फ्रॉम आइडियोलॉजी। हम आप कोई भी आइडियोलॉजी से अलग है, कम या ज़्यादा। कोई भगवान में विश्वास करता है, कोई कुछ में विश्वास करता है, कोई लेकिन है तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट आइडियोलॉजी कुड बी ब्लाइंड। आइडियोलॉजी के हैविंग आइडियोलॉजी, जैसे मैं ऑनेस्टी में विश्वास कर रहा हूँ या नॉन वायलेंस में, गांधीयन फिलोसफी इज ऑल्सो आइडियोलॉजी।
And if you totally stick to the things, Gandhian principles, then you will not be able to see the position of the Bhagat Singh. Because if we take the example from the context, अगर आप गांधी जी की बातों में टोटली विश्वास करते हो तो भगत सिंह को सुनना ही चाहेंगे कि व्हाट यू आर टेलिंग एटलीस्ट. सो सी दिस थिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो extreme dedication to some ideology could make you blind. But suppose you are a scientific person also, suppose you have ideology that honesty is the best principle, you have ideology that we must help there may be many tenets in different ideologies that are very pragmatics, that helps in living a good life. So everybody is comfortable with that kind of ideology. Ideological problem and blindness could create havoc in that case when you say that terrorism. See this thing example. Terrorism kind of thing is a product of ideology. It is not of religion. Islam का terrorism से कोई लेना देना नहीं. It is a radical ideology when you follow that either when you start thinking in black and white, I am right and you are wrong, that kind of ideological blindness, that kind of extremism creates problem, and that is a you can say ideal example of blindness, ideological blindness. एक सुसाइड बॉम्बर को आप क्या समझते हो? आप ऐसे समझो LTT जो पहली बार सुसाइड बॉम्बिंग के लिए जाना गया पूरे वर्ल्ड में, LTT की अपनी फिलॉसफी थी, उनकी आइडियोलॉजी थी कि सिंगला से हमारा ये है इशू है और सिंगलर ने हमको ये किया. तो प्रभाकरन के जो आइडियोलॉजी थे उनके फॉलोअर्स में वो आइडियोलॉजी आया. देखो आप अपने को बॉम्ब से उड़ा देने में भी लोग ज़रा भी वो संकोच नहीं करते थे. डू यू थिंक दैट ए नॉर्मल पर्सन कैन डू दिस थिंग? इट इज़ या अभी आप IS का एग्जाम्पल लो, कहीं भी जो होता है सुसाइड बॉम्बिंग या it is only when you are stick to some ideology you can do this kind of thing. And to what extent it is justified? आप कहोगे कि आपने हजारों लोगों को मार दिया तो what is terrorism? Terror means you terror will be instrumental in bringing about change that they seek. They believe in this kind of thing. मैं आपको इतना टेरिफाइड कर दूंगा अपने एक्ट से कि कोई भी सरकार हमारी बात मानेगी. दिस इज द फिलॉसफी. तो ब्लाइंडनेस है या नहीं? यू कैन जज दिस थिंग. तो आइडियोलॉजिकल ब्लाइंडनेस तो होता है, इसमें कोई शक नहीं. बट सॉफ्ट आइडियोलॉजी अगर किसी की भी हो, अगर हम लेते हैं एंड इफ़ यू मेंटेन साइंटिफिक टेम्पर इन द लास्ट पैराग्राफ यू कैन गो लाइक दिस, देन व्हाट वुड हैपन? कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो कमो बेस कोई आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता हो. कमो बेस में कह रहा हूँ, हो सकता है ये बहुत ही आप ज़्यादा कॉन्शियसली अवेयर नहीं है, बट ये हम नहीं कहते कि आप टेररिज्म जैसी बातों को बात करें. तो गांधीयन फिलॉसफी को मानते हैं ना, अच्छी चीज़ों को मानते हैं, वो भी एक आइडियोलॉजी है कहीं ना कहीं. तो विचारधारा से अगर प्रभावित है तो कोई बुराई नहीं उसमें. बट व्हेन यू लूज़ योर साइंटिफिक टेम्पर, जब अपने बोध की हम चीज़ों को मेरिट के आधार पर देखना छोड़ दें और इस बात पे हम देखें कि आप बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो. देखो आप क्या कह रहे हो मुझे नहीं मालूम, आप कांग्रेस को इसलिए मैं कहूँगा गलत हो क्योंकि मैं बीजेपी का हूँ, और मुझे नहीं क्या मालूम आप क्या कर रहे हो, मैं कांग्रेस का हूँ इसलिए आप बीजेपी को इसलिए नहीं मानूंगा. आप ये बात समझ सकते हैं, ये आइडियोलॉजिकल ब्लाइंडनेस है. और इसी कंटेक्स्ट में मैं देखता हूँ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो डिबेट हो रहा था कि व्हिप पे जो बात होती है कि पार्टी व्हिप पे जो बात करते हैं तो पार्टी की पोजीशन को इंडिविजुअल जो व्यू है वो कहाँ गया? तो किसी न किसी फ्रेमवर्क में बंध जाता है, समथिंग लाइक दैट, जो कि पार्टी व्हिप है उसी लाइन पे आप वोट करेंगे, उसी लाइन पे बात करेंगे. तो ये भी एक ब्लाइंडनेस ही हो जाता है. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट एंड डिस्कशन जो चल रहा था, तो वैसा जो कि व्हिप पे काम करना चाहिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो लोग हैं, या उनका अपना इंडिविजुअल फ्रीडम होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट. वापस आते हैं इस ट्रैक पे, तो आपको लास्ट पैराग्राफ में ये लिखना है कि जो आइडियोलॉजिकल जो आइडियोलॉजी हो सकता है, अगर आप रख सकते हैं किसी, बट वो इस हद तक करना हो कि आपको ब्लाइंड कर दे एंड यू आर नॉट एबल टू सी द मेरिट ऑफ समथिंग दैट इज़ बिफोर यू. हम इस चश्मे से देखना शुरू करें चीज़ों को और जो आँखों की जो मूल जो क्वालिटी है वही ख़त्म हो जाए, तो वो चश्मा ही बेकार है.
समथिंग लाइक दैट। तो ये आइडियोलॉजी पर इस फ्रेमवर्क पे अगर आप बिल्डअप करेंगे आंसर, देन आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू मेक अप योर यू नो होल थिंग। एंड देन आप, जैसा मैं कहता हूँ, फिर आप लास्ट में आप इंट्रो का जो है उसमें आप जोड़ लो बॉडी में। इंट्रो में क्या करना है कि आप कोई इंसिडेंट से उठा लो। आप जैसे मैंने टेररिज्म का एग्जांपल ले लिया, LTT से ही ले लिया था या ISIS से ले लिया था, या कुछ भी ऐसा एग्जांपल जो इंट्रिग्यूइंग हो, जो आइडियोलॉजी के इफेक्ट को दिखाता, आप जोड़ दो। तो यू नीड नॉट टू मेमोराइज व्हाट आई हैव अटर्ड हियर, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क एंड कम अप विथ योर ओन कंटेंट। आई एम श्योर दैट यू विल मेक यू विल बी एबल टू ड्राफ्ट अ गुड एस। एंड मैंने जितने भी लोगों को गाइड किया है, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उनको भी इसी तरीके से गाइड किया। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट। एंड अगर आपको मेरे ऐसे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन करके आप वीक में एक टेस्ट लिखेंगे। इट इज़ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। कभी कभी ऐसा होता है कि आइडियाज़ यहाँ होते हैं, हम लोग लिख नहीं पाते, एंड गेट इट इवैल्यूएट। तो उसको आप करेंगे तो धीरे धीरे आपका ऐसे का स्किल डेवलप हो जाएगा, एंड इस तरह से डिबेट एंड डिस्कशन में भाग भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।